اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، آج میں دہلی میں ہوں اور صبح 9 بجے ہم الحمدللہ جمعیت علماء ہند کے ہیڈ آفس دہلی پہنچے۔ میں رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جمعیت کے ہمارے اکابرین سے آج ملاقات ہوئی۔ الحمدللہ حضرت مولانا ارشد مدنی، حضرت مولانا اظہر مدنی اور حضرت مولانا معصوم ثاقب صاحب، یہ سب کے سب یہاں موجود ہے اور اللہ کا شکر ہے سب سے ملاقات کا موقع بھی اللہ نے نصیب کیا۔ میں دہلی میں ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 دن پہلے مجھے مہاراشٹر کانگریس کمیٹی کا جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا، بحمد اللہ کا احسان، اور اسی سلسلے میں ہمیں دہلی بلایا گیا ہے۔ دعائیں کیجئے کہ دہلی کا یہ جو سفر ہوا ہے، کانگریس کے لیڈران اور نیتاؤں نے یاد کیا ہے، ان سے ملاقات ہوگی۔ آپ یہ بھی دعا کریں کہ ہمارا دہلی کا یہ سفر کامیاب ہو اور رب کریم ہمارے کاموں کو قبول کرے اور ہماری خدمات کو اللہ قبول کریں، اور جس مقصد کے تحت کانگریس نے اتنی بڑی ذمہ داری سونپی ہے اس منصب کا، اس عہدے کا بھی ہم حق ادا کریں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2008 میں مالیگاؤں بم دھماکہ معاملہ پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے آیا تھا، اور اس بم دھماکے میں معاملے میں پرگیا سنگھ ٹھاکر سمیت 7 ملزمین تھے۔ گزشتہ کل بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ خبر سنا رہا ہوں کہ 2008 مالیگاؤں بم دھماکہ معاملہ خصوصی عدالت نے پرگیا ٹھاکر سمیت 7 ملزمین کو بری کر دیا، اور جسٹس لاہوٹی نے اس وقت ایک کمنٹ کیا، ایک بات کہی، اور یہ کہا کہ دہشت گردی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، ثبوت نہ ہونے پر بری کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت کے فیصلے سے مہلوکین کے رشتہ دار بڑے مایوس ہیں، اور اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی جو اس کیس کو لڑ رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی 12 ملزمین ایسے جن میں سے 7 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اور 5 کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان 12 میں سے 5 پھانسی والے، جس میں سے ایک جوان میرے اپنے شہر جلگاؤں کا تھا، آصف بشیر خان، رہا ہونے کے بعد 19 سال کے بعد رہا ہوا، اور شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ میرے گھر آیا تھا۔ میں نے اس سے جیل کی پوری داستان سنی، 1.5-2 گھنٹہ تک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ اب اس فیصلے میں بھی پرگیا سنگھ ٹھاکر اور اس کے ساتھیوں کو، ملزمین کو بری کر دیا گیا ہے۔ اس کو لے کر جمعیت علماء ہند کے ہمارے جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، کیونکہ مرنے والوں کے تمام رشتہ دار اس فیصلے سے مایوس ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 19 سال کے بعد میں 12 لوگوں کو جب بری کیا گیا ممبئی ٹرین بم بلاسٹ معاملے میں، تو ہم نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ اگر یہ مجرم نہیں ہیں تو پھر اصل مجرم کون ہیں؟ اب یہاں پر بھی اگر پرگیا سنگھ ٹھاکر اور اس کے ساتھیوں کو اگر بری کیا جاتا ہے تو سوال یہاں پر بھی اٹھتا ہے کہ اگر یہ مجرم نہیں ہیں تو اصل مجرم کون ہیں؟
नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर, जी हाँ, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी करोड़ों रुपये सिर्फ दुनिया घूमने में लगा देते हैं और भारतवासियों को बेवकूफ बनाते हैं कि हजरत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ट्रंप, जिसके प्रचार के लिए मोदी अमेरिका गए और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाकर आए थे, इनकी मनहूसियत से ट्रंप वो इलेक्शन हार गया। और अब खबरें आ रही है कि जिसको दोस्त कहते थे, और हमारे यहाँ की गोदी मीडिया ट्रंप के साथ दोस्ती और बड़ी जिगरी दोस्ती का ऐलान करती थी कि हमारे मोदी जी के ट्रंप से ऐसे गहरे ताल्लुकात है। मैं आपको बताऊं कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को ठोक दिया और नरेंद्र मोदी की वजह से पूरे मुल्क का नुकसान हुआ। 25% टैरिफ लगाया गया है और अलग से जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। आज के अखबारात ने हेडलाइंस लगाई है कि ट्रंप इस्लामाबाद पर मेहरबान हो गया, पाकिस्तान पर मेहरबान हो गया, और एक दिन पाकिस्तान से अब ऐसा वक्त भी आएगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। इसी को लेकर आज मीडिया में खबरें चल रही है। शशि थरूर जो बड़े कदावर नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में तेल मिलना महज एक गलत फहमी है। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तेल मुआहदे पर शशि थरूर ने तंज करते हुए ये बात कही है, लेकिन ये हकीकत है कि ट्रंप ने आखिर दोस्त के सीने में खंजर घोंप दिया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही जी हाँ, मालेगांव के जो मुलजमीन रिहा हुए हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इसको लेकर हमारे कांग्रेस के दबंग और कदावर नेता हर्षवर्धन जी सपकाल ने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि रेलवे धमाका सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जमीयत उलमाए हिंद ने तो हुकूमत चीख उठी, बिलबिला उठी, तिलमिला उठी, लेकिन अब मालेगांव केस पर हुकूमत आखिर खामोश क्यों है? क्योंकि मालेगांव में जितने भगवा आतंकी थे सब बरी कर दिए गए हैं, तो जनाब हुकूमत पूरी तरीके से खामोश है। लेकिन जमीयत उलमा खामोश नहीं है और जमीयत उलमा मालेगांव बम ब्लास्ट केस में रिहा होने वाले प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके तमाम साथियों के खिलाफ बाकायदा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं हर्षवर्धन जी सपकाल का कि उन्होंने खुलकर यह बयान दिया है और हुकूमत को चैलेंज किया है कि जब 12 मुल्जिमीन मुस्लिम रिहा हुए थे, 19 साल की कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर जब वो घर आए तो तुम्हारे पेट में मरोड़ हुआ, तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई और तुमने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। लेकिन जब मालेगांव के भगवा आतंकी बाइज्जत रिहा हो रहे हैं तो इस वक्त हुकूमत आखिर खामोश क्यों है? नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि राज्यसभा में और पार्लियामेंट में सीज फायर को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग बंदी हुई, इसको लेकर ट्रंप ने बार बार यह कहा कि मैंने जंग बंद कराई। जाहिर बात है कि यह हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात थी कि किसी तीसरे के कहने पर जंग बंद हुई है। अब सवाल अपोजिशन पार्टी ये खड़ा कर रही है कि आखिर ट्रंप होता कौन है? जब हमारी फौज पूरी तरीके से तैयार थी, हमारी बेटी सूफिया कुरैशी जबरदस्त ऑपरेशन के लिए तैयार थी, उस वक्त ऐन वक्त पर जब पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका आया था तो हिंदुस्तान ने हथियार डाल दिया सीज फायर और जंगबंदी का ऐलान करते हुए। तो इसको लेकर अब राज्यसभा और पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टियां जबरदस्त घेराव कर रही है। गुज़िश्ता कल प्रियंका गांधी ने भी तंज किया और कहा कि मोदी दुनिया भर में घूमकर दोस्त बनाते हैं और हमें सीज फायर और टैरिफ झेलना पड़ता है। यानी सीज फायर भी हुआ ट्रंप के कहने पर और टैरिफ की मुसीबत भी आई ट्रंप के कहने पर और ट्रंप के इशारे पर। नाज़रीन, मालेगांव ब्लास्ट केस फैसले की कुछ खास बातें। जी हाँ, अदालत ने यह फैसला दिया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, अजय रहीरकर, समीर कुलकर्णी, रमेश उपाध्याय और सुधाकर चतुर्वेदी पर आयद इल्जामात साबित नहीं हो सके हैं। अदालत ने कहा कि इस्तिगासा यह साबित करने में नाकाम रहा कि बम नस्ब करने की साजिश में मुल्जिमान बराह रास्त मुलव्विस थे। मोटरसाइकिल की मिल्कियत
साबित न होने को लेकर भी यह कहा गया कि जिस मोटरसाइकिल में बम नस्ब था वो साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन अदालत ने कहा कि यह साबित नहीं किया जा सका कि मोटरसाइकिल वाकई के वक्त उनके कब्जे में थी या वो जानती थी कि इसका क्या इस्तेमाल होगा। कर्नल पुरोहित को लेकर कहा गया है कि पुरोहित के खिलाफ फौजी इंटेलिजेंस के राब्तों के अलावा कोई बराह रास्त शवाहिद नहीं है कि उन्होंने बम फराहम किया या किसी साजिश का हिस्सा बने। और ख़ास बात इस फैसले में ये भी रही है कि तकरीबन 34 गवाह मुनहरिफ हो गए। केस में 232 गवाहान पेश हुए, जिनमें से 34 गवाहान अपने बयान से मुकर गए। फॉरेंसिक शवाहिद में भी तजाद पाया गया। ताखीर की वजह से ये केस कमज़ोर हो गया और आखिर गुज़िश्ता कल साध्वी प्रज्ञा सिंह और उसके साथी बाइज्जत रिहा हो गए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जमीयतुल कुरैश महाराष्ट्र बल्कि ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश इसका पहला इजलास जलगांव शहर में हमारी ही सदारत में हुआ और ये इजलास बड़ा कामयाब रहा। उसके बाद जमीयत उलमा ने धूलिया शहर, मालेगांव शहर, औरंगाबाद शहर और अब परभनी में, आप जानते हैं कि कुरैशी बरादरी को भगवा आतंकी और ख़ासतौर से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुंडों की वजह से काफ़ी तकलीफ़ें आती थी और पुलिस भी हफ्ता वसूली करती थी, जिसको लेकर जमीयतुल कुरैश, कुरैश बरादरी और कुरैश समाज ने हड़ताल पुकार दिया और महाराष्ट्र में पिछले 20 दिनों से पूरा कारोबार बंद है। पूरा कारोबार बंद का मतलब सिर्फ गोश्त की दुकानें नहीं बल्कि गोश्त की मार्केटें भी पूरी बंद है और जो जानवरों की मार्केट होती है वो जानवरों की मार्केट भी पूरी तरीके से बंद है, जिससे शेतकरियों को, किसान भाइयों को काफी तकलीफें हो रही है और गवर्नमेंट का भी करोड़ों अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है। गुज़िश्ता कल परभनी में बाकायदा जमीयतुल कुरैश ने आंदोलन भी किया और खामोश एहतजाजी मोर्चे का भी इनकाद किया। मैं आपको बताऊं कि जमीयतुल कुरैश महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मुत्तहिद होकर यह काम कर रही है, एहतजाज आंदोलन कर रही है। हालांकि कुरैश बिरादरी को भी काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन कुरैश बिरादरी ने तय किया है कि हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे और जायज कारोबार में जो भगवा आतंकियों की जानिब से जो तकलीफें आती है और पुलिस की जानिब से जो तकलीफें आती है इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देख रहा हूं कि कुरैश बरादरी के इस आंदोलन, इस खामोश एहतजाज से भी काफी असर पड़ रहा है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल अपोजिशन लीडर, हिज़्ब इख्तिलाफ के दबंग और कद-आवर नेता राहुल गांधी ने मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने पूरी मईशत, दिफा और खारिजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। और राहुल गांधी ने एक बड़ा जुमला ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी वजीर आजम वही करेंगे जो ट्रंप चाचा कहेंगे। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने गुज़िश्ता कल यानी जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर ज़बरदस्त अंदाज में शदीद हमला करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने यानी मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की मईशत, दिफाई पॉलिसी और खारिजा पॉलिसी को भी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। और उन्होंने दावा किया कि मोदी वही करता है जो ट्रंप कहता है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल बाकायदा मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने भी साफ तौर से कहा है कि आज हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम यानी एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से खंडर बन चुका है। मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि मोदी जी जापान 5वीं जमात के बच्चों को कोडिंग सिखा रहा है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला करते हुए कहा है कि आज हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम पूरी तरीके से खंडर बन चुका है। वहीं पर यह भी खबरें आ रही है कि जनाब दिल्ली का निज़ाम आपके दौर में भी काफ़ी बद से बदतर हुआ है, लेकिन अब बीजेपी दिल्ली में आई है तो यकीन है कि बीजेपी दिल्ली का भी बड़ा बुरा हाल करेगी और जब मुल्क का दिल्ली का बुरा हाल होगा तो आप समझ सकते हैं कि मुल्क का कितना बुरा हाल होगा। इसीलिए बिहार के साथियों से भी कहा जा रहा है कि बिहार का इलेक्शन करीब है, जरा भी गफलत न करें और पूरी तरीके से बीजेपी को बिहार से बाहर करें।
حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون میں مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ